Hello everyone, welcome to UtkalEdu Classes. Today we are diving into the previous year's pedagogy and evaluation questions of LTR TGT CBZ 2025. The language of this video is both English and Odia medium. So make sure you watch till the end and don't forget to subscribe for more updates. Let's get started. The first question is, the study of variation in psychological characteristics of individuals is known as study of dash. ଏଠି ପଚାରିଛି ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଇନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହେ? ତାକୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ କୁହେନି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଶିଖିବା, ବିହେଭିଅରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବା, ଟିଚିଂ ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ କରିବା, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା। ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଡିଜର୍ଡର ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆବନର୍ମାଲ୍ ବିହେଭିଅର ଶୋ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଡିଜର୍ଡର କହିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବନି। ସୋସିଆଲ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ସୋସିଆଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ନେଇକି ଜଣକୁ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା ସୋସିଆଲ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କହିବା। କାରଣ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ କରେ ନା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେଟ୍କୁ ନେଇକରି ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ କରାଏ ବା ସେପାରେଟ୍ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କାହାକୁ କହିବା ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରେଫର୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହାଉ ପିପୁଲ୍ ଡିଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଆନାଦର। କେମିତି ଲୋକ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ନେଇକି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେଟ୍ସକୁ ନେଇକି ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ପର୍ସନାଲିଟି, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ମୋଟିଭେସନ୍, ଇମୋସନାଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କହିବା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ among students can help a teacher in dash. ଦ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଟିଚର୍କୁ ସେ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବ? ମେଣ୍ଟେନିଂ ପ୍ରପର୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଷ୍ଟଡିଂ ନେସେସରି ଲିଟରେଚର୍, ଡିଭାଇଜିଂ ସୁଇଟେବଲ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆନ୍ସର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଜିଂ ସୁଇଟେବଲ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କାହିଁକି ନା କାରଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ନଲେଜ୍ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକରି ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କହିବା। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆମେ ଏହା ଜାଣେ ଯେ ଏଭ୍ରି ଲର୍ଣ୍ଣରର ନିଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନିଡ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ନଲେଜ୍ ହେଲ୍ପ କରିବ ଟିଚର୍କୁ ଡିଭାଇଜିଂ ସୁଇଟେବଲ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ରୋଜର୍ସ ଡିଫାଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ଫ୍ରମ୍। କାର୍ଲ ରୋଜରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଥବ ସେ ଯାଇ ମିଟ୍ କରିବ କାହାକୁ ନା ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫକୁ। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଯାହା ଅଛି ସେ ତା'ର ରିଅଲ୍ ସେଲ୍ଫ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଯାହା ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ହେଲା ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ। ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫକୁ ମିଟ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ କହିବା। ସେ ତେଣୁ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ'ଣ ନା ରିଅଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମେ କାର୍ଲ ରୋଜରଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ରିଅଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ। ସେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କହିବା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଠି ଦୁଇଟା ସେଲ୍ଫ କଥା କହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ରିଅଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଯେ ନିଜେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ ସେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ରିଅଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫକୁ ନେଇକି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ହେଲା କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନକଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫକୁ ମିଟ୍ କରିବ ବା ଆଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ ତା ସହିତ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମେ କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯିବ, ସେମାନେ ମିଟ୍ କରିପାରିବେନି, ସେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଇନକଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ। ତେଣୁ କାର୍ଲ ରୋଜରଙ୍କ ହିସାବରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ନା ଯିବ ରିଅଲ୍ ସେଲ୍ଫରୁ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମଡ଼ିଫାଏ ଦେୟାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍, ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମେକାନିଜମ୍ ହିସାବରେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ୍ଲୁ ଅଛି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ। ତେଣୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଆହେବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହଁ, କାରଣ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କୁହେ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେଉଁଟା ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡରେ ନହେଲେ କୋର୍ସ ଏଣ୍ଡରେ ଦିଆଯାଏ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହଁ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଫର୍ ମିନ୍ସ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଆଜ୍ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣର ନିଜକୁ ନିଜେ ଆସେସ୍ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଟୁ ରିସିଭ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଟେକ୍ନିକାଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରିପେୟାର ରହୁଛି ଫର୍ମାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆବିଲିଟି କହିବାନି, ଏକୁ ଆମେ କହିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେଡ଼ିନେସ୍। ବିକଜ୍ ଇଟ୍
लर्नर कौन अच्छी ना प्रिपेयर्ड अच्छी लर्निंग कैपेसिटी नुह लर्निंग इगरनेस नुह आंसर हो कौन ना लर्निंग रेडनेस लर्निंग एबिलिटी कहले आम देखिए हाउ वेल द लर्नर कैन लर्न मैंने केते भल भाव से शिखिपारे लर्निंग कैपेसिटी तार पोटेंशियल शिक्षा तार पोटेंशियल के लर्निंग इगरनेस माने मोटिवेशन तेणु ये देखिए लर्निंग एबिलिटी कहले आम कौन हाउ वेल स्टूडेंट कैन लर्न स्टूडेंट केमती शिखिपारे लर्निंग कैपेसिटी माने तार पोटेंशियल आ लर्निंग इगरनेस माने तार मोटिवेशन किंतु रेडीनेस कहले आम बुझे कौन रेडीनेस कहले सी जिते फिजिकली सोशियली एंड इमोशनली मेंटली केते प्रिपेयर्ड अच्छी ताको आम रेडीनेस कह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट आइटम बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन सेपरेट गुड लर्नर्स फ्रॉम पोर वन्स माने गुड लर्नर मान को पोर वन को डिफरेंट सेपरेट करने जो टेस्ट जो कैरेक्टरटा हेल्पफुल हुए सेटा हूँ कौन ना सेटा हूँ डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द आइटम जो आइटमटा कौन कर ना गुड लर्नर को पोर लर्नर ठारू डिफरेंट कर सेपरेट कर डिस्क्रिमिनेटिंग कह डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द आइटम कह डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हेल्प करे केमती ना जो लर्नर कंटेंट को भल भाव बुझी अंडरस्टैंड कर सी करेक्टली आंसर कर कि जो मैंने आंसर करें जो मैंने ठीक से बुझी नथिबे से आंसर करेंगे ना डिफिकल्टी भैल्यू कहले आम कौन बुझे ना डिफिकल्टी बुझे हार्ड के इजी के लेवल को बुझे वैलिडिटी माने जोटा आम मेजर कराया चाहिए टेस्ट रे हम जहाँ इंटेंट रखी मेजर करने जब से मेजर कला आम वैलिड कह रिलेबिलिटी माने कंसिस्टेंसी और तार स्थायित्व आम बुझा केते कंसिस्टेंट से टेस्ट नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपोर्टेंट फॉर टीचर ताले ये सब गुड़ा इंपोर्टेंट हेल्ले भी सब कम इंपोर्टेंट कौटा व्हाइल प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लासरूम इंडिविजुअल डिफरेंस ना कौटा सब कम दरकार डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स हाइट एंड वेट ऑफ लर्नर लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ द लर्नर्स तेणु आम जानते इंडिविजुअल डिफरेंस माने साइकोलॉजिकल ट्रेड दरकार साइकोलॉजिकल ट्रेड हिसाब से आम देखिए कौन ना डाइवर्स बैकग्राउंड स्टूडेंटर बैकग्राउंड को लेकिन आम पढ़ा पड़ो तेणु से इंडिविजुअल दरकार लर्निंग हाइट एंड वेट हूँ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तेणु यहाँ आंसर हम यहाँ सब कम दरकार आंसर ये क्वेश्चन हूँ यहाँ हम ऑप्शन नंबर बी से लर्निंग स्टाइल साइकोलॉजिकल नीड और लेवल ऑफ मोटिवेशन साइकोलॉजिकल ट्रेड तेणु ये क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हाइट एंड वेट ऑफ द लर्नर ये देख डाइवर्स बैकग्राउंड लर्निंग स्टाइल मोटिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट दरकार गोटे साइकोलॉजिकल ट्रेड किंतु लीस्ट इंपोर्टेंट हाइट एंड वेट कारण एगुड़ा हूँ फिजिकल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल थ्योरिस्ट गेव सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशियो कल्चरल थ्योरीटा हम जानते डायरेक्ट लेब से मन की भाइगोर्सी यार आंसर हम पूर्व जीन पियाजे होती रैडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म ब्रूनर होती डिस्कवर लर्निंग जॉन डुई होती एक्सपीरियंशियल लर्निंग तेणु आंसर है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होती कार सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से मन भाइगोर्स्की ये क्वेश्चन आंसर भाइगोर्स्की नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट यूजफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM टू बी यूज्ड बाय टीचर ताले मोस्ट यूजफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल को टीचर केमी यूज कर अट्राक्ट अटेंशन ऑफ द लर्नर टुवर्ड्स टीचर आड़ी अट्राक्ट करने नुह इज अट्राक्टिव एंड ब्यूटीफुल टू लुक एट भल देखा नुह इनवल्व सेवराल सेंस ऑर्गन्स इन लर्निंग ये आंसर हम कारण TLM उद्देश्य हूँ कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट आनिया लर्नर तेणु तार सबू सेन्स को यूज करिया सेवराल सेन्सेस को यूज करिया से आम यूज करिया हेल्प मेंटेन बेटर क्लास डिसिप्लिन यहाँ नुह तेणु आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच इज पर्पज ऑफ असेसमेंट पर्पज कौन को सेटअप रे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच रे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच रे आम कौन करें ये नॉलेज कंस्ट्रक्शन हम तेणु यार उद्देश्य कौन हम डेभलप हाबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग हाबिट नुह केबे नो हाउ चिल्ड्रेन लर्न एंड व्हाट दे लर्न कौन केमी से शिखुंट किपर शिखुंट या कौन शिखुंट से आंसर हम ऑप्शन नंबर बी नो हाउ चिल्ड्रेन लर्न एंड व्हाट दे लर्न एनश्योर क्लास डिसिप्लिन हेनी एनकरेज लर्निंग टू रेस्पेक्ट टीचर्स भी हेनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मेजर एलिमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मेजर एलिमेंट कौन ऑफ लर्निंग गिवन बाय कार्ल रोजर्स जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है तार मेजर थ्योरी कौन इमेंस कैपेसिटी ऑफ मैन नो फुल फंक्शनिंग इंडिविजुअलिटी किटा हम कारण जो रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ को मैच कर से गोटे सेल्फ एक्चुअलाइज मैन और फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल परिणत हम टैलेंट लर्निंग नुह एल थंडाइंग इंपोर्टेंस ऑफ परसेप्शन भी यहाँ भी नुह ऑप्शन नंबर बी फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ द कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी ऑफ लर्निंग ताले कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी ऑफ लर्निंग सहित कोटा मोस्ट क्लोजली देखिए डिस्क्रिप्शन नुह एक्सप्लेनेशन नुह एक्सपेरिमेंटेशन आंसर ये क्वेश्चन हम एक्सपेरिमेंटेशन इंडोक्ट्रिनेशन भी नुह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
in formal assessment system, feedback provided by teacher to learner act as। ତେଣୁ formal assessment system ରେ ସରି formative assessment system ରେ feedback ଯେଉଁ ଟିଚର ଦେଉଛନ୍ତି feedback ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବିହେଭିୟରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହୁଏ, ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଅଫ୍ ଦ ବିହେଭିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡୋମେନ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ, କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍। ନା ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, which of the following types of test items are most appropriated for assessing higher order thinking ability? higher order thinking ability ପାଇଁ ସବୁଠୁ most appropriate assessment technique କୋଉଟା, କୋଉ क्वेश्चन टाइपटा? ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नुହ, मैचिंग टाइप नुହ, एसे टाइप आंसर हम एसे टाइप, सर्ट टाइप आंसर टाइप भी नुह। एसे टाइप आंसर हम कारण कौन ना एसे टाइप क्वेश्चन कौन करे ना लर्नर को हेल्प करे एक्सप्रेस जस्टिफाई एंड डिफाइन आइडियाज एंड रिक्वायर डीप अंडरस्टैंडिंग, तार डीप अंडरस्टैंडिंग दरकार, ऑर्गेनाइज थॉट को ऑर्गेनाइज करिया, एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग को बढ़िया गुड़ा हम। ट्रू फॉल्स मैचिंग टाइप सर्ट आंसर टाइप हेनी कारण ना गोटे गोटे आइडेंटिफिकेशन रेकग्नाइजेशन को चॉइस करे। Which of the following is an example of formative assessment? formative assessment आम ड्यूरिंग द कोर्स, प्रोबिंग क्वेश्चन इन द क्लास, ये ही आंसर हम। क्लास भितर जो क्वेश्चन पड़े तक फर्मेटिव कह। एग्जामिनेशन आफ्टर द एंड कोर्स एटा समेटिव हो, आंसर हेनी। फाइनल सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट समेटिव, आंसर हेनी। एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड भी समेटिव। ये सब गुड़ाक समेटिव आसेसमेंट को बुझेब, किंतु प्रोबिंग क्वेश्चन इन द क्लास रे क्वेश्चन पचार आम कह फर्मेटिव आसेसमेंट कारण ड्यूरिंग द कोर्स चलला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विजुअल एड फॉर यूज बाय टीचर? ऑडियो विजुअल एड इन कोटा मॉडल आम जे ऑडियो होची विजुअल एड, टेलीविजन होची ऑडियो एंड विजुअल, टेप रेकर्डर होची केवल ऑडियो, प्रोजेक्टर होची केवल विजुअल। तेणु ये क्वेश्चन पचे ऑडियो एंड विजुअल एड, सेटा हिज आंसर हो टेलीविजन, ऑप्शन नंबर बी टेलीविजन। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स एनश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग? ताले ये मेथड भितर कौ मेथड आम देखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन होची कार ना लर्नर। लेक्चर मेथड टीचर सेंट्रिक, ये टीचर एक्टिव रहिबो। सेल्फ स्टडी मेथड रे जदि बा लर्नर रहिबो, एठी किंतु एक्टिव पार्टिसिपेशन रहबनी, लर्नर सेंटर किंतु एक्टिव पार्टिसिपेशन रहबनी। डिस्कशन मेथड रे एक्टिव पार्टिसिपेशन रहिबो, तेणु आंसर हो सी डिस्कशन मेथड। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन रे टीचर एक्टिव, लर्नर हो पैसिव, तेणु यही क्वेश्चन आंसर हो डिस्कशन मेथड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट बेसिक पर्पज कौन? नो द लर्नर्स एबिलिटी टू लर्न, यहाँ हेनी। अंडरस्टैंड लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाँ जो वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानापी आम डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करें, तेणु ऑप्शन नंबर बी ये बेस्ट सुइट होची। तेणु आंसर हमारा अंडरस्टैंडिंग लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज should be preferred by a teacher for ensuring effective learning about birds and their life? बार्ड्स और तार लाइफ विषय जाने गले कौ स्ट्राटेजी टीचर नब जोटा बेसी इफेक्टिव? डिस्प्लेइंग मॉडल ऑफ बर्ड बार्डर मॉडल देखिए, डिस्प्लेइंग स्केचेस ऑफ बर्ड्स, स्केच गुड़ा देखिए मॉडल, ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप टू जू गोटे ट्रिप गोटे करिया, यूजिंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स। तेणु ये सब क्षेत्र में सब गुड़ा तो गोटे गोटे स्ट्राटेजी, किंतु मोस्ट इफेक्टिव हो ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप टू जू, कारण ये आम कौन ना ये स्टूडेंट बा लर्नर ये कौन कर ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन कर। तेणु ये क्वेश्चन आंसर हम ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप टू ए जू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।